Hello everybody. I hope you all are fine there. We are again here with the new syllabus of second term. Students, nowadays everybody is very keen to work on net. You try to create a web page in your own way. But there are some techniques that you have to follow to do designing in web page. So today we are going to start with the most important language, HTML, that is hypertext markup language, the most widely used for designing purpose. So let's start with it. Let's go on the first slide. Now first slide my introduction is given. Now internet is the network of computer networks that connect millions of computers around the globe. ठीक है, this is the definition of internet. इंटरनेट जो है ये नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स है जो एक दूसरे के साथ हम जिसके ज़रिए हम कनेक्टेड है. इंडिविजुअल computers are connected to some powerful computers called servers. Now these servers stores files and information in the form of वेबसाइट्स. सर्वर्स के ऊपर क्या होता है कि हमारी इंफॉर्मेशन फाइल्स में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ वेबसाइट्स. Now these files can be accessed by different users anywhere from the world using internet connection. आप कहीं पर भी किसी भी कोने में बैठे हुए हो, then you can make use of these files from your websites. ठीक है. Websites contain different pages called web pages. वेबसाइट में हर एक तरह के पेजेस होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिकली पेजेस होते हैं, एंड दीज पेजेस आर कॉल्ड एज वेब पेज. द फर्स्ट पेज ऑफ एनी वेबसाइट इज कॉल्ड होम पेज. द होम पेज कंटेन्स लिंक्स टू अदर वेब पेजेस. दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन. Now let's see the actual meaning of hypertext markup language. Now hypertext means text stored in electronic form which has cross link between pages. Electronic form में जो text store किया जाता है which has cross link between pages, that is known as hypertext. And markup language means tags that are mostly paired and are used to mark the text or other elements to apply effect on it. ठीक है. Now hypertext markup language, अगर आपने पूरा ऐसे डिफाइन करना तो you will define it as it is a computer language which is used to write programs for creating web pages. Web pages create करने के लिए जो language हम use करें that is known as HTML. The program may be written in any Word document. हम इसे नोटपैड में लिख सकते हैं, वर्ड पैड में लिख सकते हैं, एंड इट मे बी सेव्ड एज HTML पेज. ठीक है, और इसे हमने HTML पेज में सेव कर देना. इट मे बी ओपन इन एनी ब्राउज़र एज अ वेब पेज. किसी भी ब्राउज़र से हम ये खोल सकते हैं. ठीक है. Now the four symbols that are very important in HTML language is greater than, less than, double quotes and ampersand sign. ठीक है. Now let's see the advantages of HTML. It is a versatile language. It is a versatile language which can be used on any Windows or other platform. किसी भी तरह के प्लेटफॉर्म पर आप इससे काम कर सकते हो. ठीक है. Now HTML is supported by all browsers. हर एक तरह के ब्राउज़र के साथ आप इसे खोल सकते हो. Almost all the browsers around the globe are supported by HTML. HTML provides an easy way to optimize a website in HTML according to browsers to the web developers. ठीक है. Now display changes instantly. One of the biggest advantage of HTML is that one can see the changes instantly. ठीक है, आप अपने चेंजेस इंस्टेंटली कर सकते हो जस्ट बाय सेविंग इट एंड रीलोडिंग द प्रीवियस HTML पेज. ठीक है. अनलाइक अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देयर इज़ नो नीड टू रन द होल कोड एंड फाइंडिंग आउट वेयर द एरर इज. जैसे आप दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में सारा का सारा प्रोग्राम रन करते हो फिर आपको एरर मिलता है, बट इसमें आप सामने ही इसका एरर रिमूव करके इसे आप करेक्ट कर सकते हो. ठीक है. Then HTML is user friendly.
it is a user-friendly programming language. One does not need to have any prior knowledge of any language. इसके लिए आपको कोई और लैंग्वेज की नॉलेज होनी ज़रूरी नहीं है. अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिंपल इंग्लिश इज़ सफिशिएंट टू वर्क विद इट. ठीक है, सिंपल इंग्लिश में अगर इसे लिखा जाए तो आपको ये समझ आ जाएगा. देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ वेब पेज डिज़ाइनिंग यूजिंग HTML. अगर आप वेब पेज डिज़ाइनिंग कर रहे हो यूजिंग HTML लैंग्वेज तो आपने क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है. Now the HTML consists of standardized codes, tags that are used for defining the structure of information on a web page. HTML में हम क्या यूज़ करते हैं? टैग्स कौन से होते हैं? ग्रेटर साइन, लेसर देन साइन, इसको हम कहते हैं टैग्स. ठीक है, ये हमने यूज़ करने हैं. HTML uses a descriptive markup to define the structure of a text area. There are different tags which are used to define a document area which has certain characteristics. different तरह के tags इसमें यूज़ होते हैं. ठीक है, आगे जाके हम सारे ये tags भी देखेंगे. These tags are called HTML elements. Now, important tips for designing a home page. Next one is you should determine the short and long term goals. ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना लंबा प्रोग्राम बनाना है, छोटा बनाना है कि बड़ा बनाना. द होम पेज मस्ट बी डिज़ाइन विद क्लियर कंसेप्ट. आपके माइंड में क्लियर कंसेप्ट होना चाहिए सो एज टू डील विद शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म गोल्स. द बैकग्राउंड शुड बी चूजन सो एज टू सूट द पेज कंटेंट्स. आपकी जो बैकग्राउंड है वो पेज कंटेंट के हिसाब से होनी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, अ डार्क बैकग्राउंड विद डार्क कलर टेक्स्ट विल नॉट प्रूव रीडेबिलिटी. ठीक है, देन द आइकन्स शुड बी चूजन विच आर सिंपल, शार्प, मीनिंगफुल एंड अट्रैक्टिव. हमेशा अपने आइकन्स वो चूज़ करने हैं जो मीनिंगफुल हो, अट्रैक्टिव हो और शार्प. देन द नेक्स्ट थिंग इज द types must be chosen correctly for those pages that are to be placed on a web page. हमेशा आप वही टाइप चूज़ करो जो आपने डिस्प्ले करने हो वेब पेज. ठीक है, देन important matter should always be highlighted. ठीक है, but a number of things should not be highlighted. So the next slide is HTML elements. The first element in HTML document is the HTML which we use to write a document structure. The HTML element contains head and body elements. ऐसे सबसे पहले अगर आपने प्रोग्राम लिखना है then we have to make the program to write as HTML angular bracket में इस तरह से लिखोगे. ठीक है, then you will write the head element. ठीक है, हेड के बाद हेड एक बार आपने ऑन टैग में लगा दिया, एक बार आपने ऑफ टैग में लगा दिया. देन बॉडी एक बार आपने ऑन टैग में लगा दिए एंड दिस इज ऑफ टैग. अगेन HTML को आपने क्लोज कर दिया. ये छोटा सा प्रोग्राम बना. ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज़ द हेड एलिमेंट. हेड एलिमेंट अगर आपने यूज़ करना है तो आप कैसे यूज़ करोगे? HTML, यू विल गिव द हेडिंग हेड, उसके बाद टाइटल दे दिया, हेड को क्लोज कर दिया, HTML को क्लोज कर दिया. सो इन HTML डॉक्यूमेंट द हेड एलिमेंट रेफर्स टू द हेड पोर्शन. दिस पोर्शन जनरली कंटेन्स इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले एट द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट लाइक द हेडिंग. ठीक है, हेडिंग डिस्प्ले करने के लिए वी मेक यूज ऑफ हेड एलिमेंट. इस तरह से आपका प्रोग्राम लिखा जाएगा. Then the next one is the base element. Base element is generally the URL for the document. ठीक है, जो डॉक्यूमेंट आप लिख रहे हो अगर उसका आपने URL शो करना है then you write the program in this form. It describes the browsers where the document is located. डॉक्यूमेंट कहाँ पर लोकेटेड है and keeps the base as a starting point to resolve the relative hyperlinks and paths. For example, head, base, H reference is equal to path दे दिया, then head close कर दिया. ठीक है, then the next one is the index element. Now this element is helpful for keyword searching of a document. It informs the HTML browser that the document is an index element. The document may be queried by adding an interrogative mark at the end of the document address. इसकी आपका syntax कैसे होगा? head bracket में, then is index, then h reference और ये path आ जाएगा आपका. ठीक है, we'll do the programming later on.
Next one is the title element. Now this element is used to show the title of the document. अगर आपने document का title बताना है, then you make use of title element. Every HTML document must have a title and should have a title element. For example, head, title आपने display करना है, angular bracket में पहले on tag में title लगाओ, then कोई भी heading दे दो, जैसे I have given IT Professional Clubs India, then close this off करो इस टैग को, टाइटल को, बाय मेकिंग अ हैश, देन हेड को क्लोज करो, यहाँ पर भी एक हैश आना था. देन द नेक्स्ट वन इज body element. The body element contains the text and the images which constitutes the page. It appears just after the head portion of any HTML document. ठीक है, body आप इस तरह लिखोगे program body, then document contents, and then you will close the tag body. Then BR element, that means break element. अगर आपने line break करनी है किसी program में तो आप कैसे करोगे? The line break is given by the BR element. It is used to specify the line break so that the new line could be started from a new place. New line अगर new place से आपने start करनी है, then you make use of this tag BR element. ठीक है, जैसे यहाँ पर शुरू हुआ है प्रोग्राम बॉडी, बॉडी के बाद ब्रेक दिया है प्रोग्राम में, IT प्रोफेशनल क्लब ब्रेक दिया है, टैग लगा दिया. इसका आपने एक ही टैग लगाना, ऑफ टैग नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा. ठीक है, देन HR एलिमेंट, हॉरिजेंटल रूल. This is specified by the HR element. It draws a line across the page width. अगर page width पर आपने line draw करनी है, then you make use of this HR element. Example, HR, then address कोई भी दे दो, then इसे भी ऑफ टैग में लगाने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि दिस इज़ एन एम्प्टी टैग. देन इटैलिक्स, इटैलिक्स के लिए यू विल मेक यूज़ ऑफ आई टैग. ठीक है, बाय यूजिंग इटैलिक्स एलिमेंट यू मे स्पेसिफाई द कैरेक्टर्स विच यू हैव टू डिस्प्ले इन इटैलिक टाइप पेस्ट. टेढ़ा अगर थोड़ा सा आपने इस लाइन को शो करना है इटैलिक फॉर्म में तो उसके आगे पीछे आप इटैलिक टैग लगा दो. ठीक है, देन अंडरलाइन, अंडरलाइन टैग लगाना है तो यू विल मेक यूज ऑफ यू टैग. ठीक है, देन स्ट्राइक एलिमेंट करना है, देन यू विल मेक यूज ऑफ द स्ट्राइक टैग. ठीक है, वी यूज दिस एलिमेंट व्हेन द कैरेक्टर्स बिटवीन स्ट्राइक एंड स्ट्राइक आर शोन विद द क्रॉस लाइंस ऑन द कैरेक्टर्स. जब आपने क्रॉस लाइंस शो करनी होती है किसी कैरेक्टर्स पर, देन आप ये स्ट्राइक टैग को यूज करते हो. देन सब एलिमेंट, व्हेन यू आर राइटिंग द साइंस पेपर या एनी मैथमेटिकल नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन आप लिख रहे हो, सपोज कर लो DVDs आपने लिखना है, एस छोटा बड़ा आपने करना है, तो इन दैट केस यू विल मेक यूज ऑफ दिस सब. नाउ सब स्टैंड्स फॉर सबस्क्रिप्ट. दिस एलिमेंट शोज द कैरेक्टर्स विच आर स्मॉलर इन कंपेरिजन टू द रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर्स. ठीक है, बाकी कैरेक्टर से अगर आपको इससे छोटा शो करना है देन यू विल मेक यूज ऑफ दिस सब टैब. ठीक है, देन सुपरस्क्रिप्ट टैब. वी यूज दिस एलिमेंट फॉर शोइंग अ कैरेक्टर्स इन स्मॉल साइज. अगर TM को आपने छोटा करना, जैसे वंडरलैंड वर्ड मैंने लिखा और TM मैंने ऊपर कर दिया छोटे फॉर्म में, देन इन दैट केस यू विल मेक यूज ऑफ सुपरस्क्रिप्ट टैग. देन द नेक्स्ट वन इज द एट्रीब्यूट्स. Attributes are written within angular brackets one after other with a space between each of them. For example, font size is equal to 5, color is equal to red. Here size and color are the attributes of the font tag. जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है font size 5 है, color red है, यहाँ पर size और color क्या बन गए? size और color बन गए attribute. ठीक है, font tag के एट्रीब्यूट बन गए. ठीक है, सो एट्रीब्यूट्स आर रिटन विद इन एंगुलर ब्रैकेट्स वन आफ्टर द अदर विद द स्पेस बिटवीन ईच ऑफ देम. ना बैकग्राउंड एट्रीब्यूट अगर आपने देना, बाय यूजिंग दिस एट्रीब्यूट यू मे पॉइंट टू एन इमेज फाइल दैट विल बी फाइल्ड अक्रॉस द ब्राउजर window providing background for the HTML document. Background element may enhance the visual effect and make the page more attractive. अगर आपने अपने प्रोग्राम में कोई बैकग्राउंड इमेज देनी है, then
what you will do, you will make use of body background. body background में आप पाथ दे दोगे कि किस चीज़ की आपने बैकग्राउंड देनी है और वो चीज़ कहाँ पर पड़ी हुई है आपको पाथ में शो करना पड़ेगा. देन यू विल क्लोज द बॉडी टैग. देन बैकग्राउंड कलर इफ़ यू वांट टू गिव, लेट्स से बैकग्राउंड कलर आपने देना है ग्रीन. ठीक है, सो यू विल राइट एज बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू ग्रीन एंड देन यू विल क्लोज द बॉडी टैग. ठीक है. Then text attribute. We use this attribute to set the background color of the document. For example, body BG color is equal to green. Text attribute अगर आपने change करना है, then you make use of this BG color. Then left margin. This attribute allows the left margin to be adjusted. अगर आपने left margin adjust करनी है, then you will write as body left margin is equal to 50. देन साइज एट्रीब्यूट. अगर आपने फॉन्ट साइज चेंज करना है, देन हाउ विल यू राइट, डिक्रीज करना है, इंक्रीज करना, तो आप कैसे लिखोगे? फॉन्ट साइज इज इक्वल टू द वैलिडिटी डिफ़ॉल्ट साइज आप लिखोगे कि आपको क्या चाहिए प्रोग्राम में. changes the font sizes to 4. So the size attribute allows the user to give a specific size for the font. The valued value range is from 1 to 7, but the default size is 3. ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 3 होता है. यू मे ऐड प्लस और माइनस साइन टू इंक्रीज और डिक्रीज द साइज फ्रॉम द बेस फॉन्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट. ठीक है. देन कलर एट्रीब्यूट. अगर आपने कलर कोई चेंज करना है, ठीक है, द कलर एट्रीब्यूट चेंजेस द टेक्स्ट कलर. टेक्स्ट कलर चेंज हो जाता है विच अपीयर्स ओवर द स्क्रीन. द कलर में बी सेट बाय गिविंग द नेम ऑफ द कलर सपोर्टेड बाय द ब्राउजर. फॉर एग्जाम्पल फॉन्ट कलर इज इक्वल टू ब्लू. ठीक है, तो इससे क्या होगा कि सारा फॉन्ट का कलर जो है चेंज हो जाएगा. अलाइन एट्रीब्यूट. अगर आपने लेफ्ट अलाइनमेंट करनी है तो यू विल राइट एज अलाइन इज इक्वल टू लेफ्ट. इट विल सेट्स द इमेज अगेंस्ट द लेफ्ट मार्जिन एंड गेट्स प्लेसमेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द टेक्स्ट. देन अलाइन टॉप. अगर आपने करना है, you will make use of align attribute. The image is aligned on the top of the page. Align middle करना है, so it will align the image on the middle of the screen. So this was all about the slide. I hope each and every point is clear to you. Stay safe, stay healthy and happy learning.